Less information can mean two things. Either it's a super easy set or it is a set with very less information and hence it becomes very tough. Both are right. और क्या पता चलेगा 1 2 3 4 की जगह उन्होंने पैराग्राफ दे दिया. Okay, start with 2 or where do we start with? What does somebody else think? Fair. Everybody thinks we should start with 2. So let us start with 2 then. सबसे पहले हम लिख लेंगे there are 5 friends. Important to write. Very, very important that we write these things because then we lose track of variables and we have to read the question back again. That's the worst thing ever. That's why we write it. Okay? There are 5 nations. UK, USA, Australia, France and Spain. Right? Then there are 5 games. What are those games? Football, cricket, hockey, tennis and polo. Right? So now we'll of course draw a table. This is our arrangement. We will make a table. People, nations, games. Right? ये हो गया, लिख दिया. अभी where do we start from? We start from clue number 2 because it tells us direct information about one of these people. C, J, D, A and B. What does it tell? D is from USA and plays football. Okay, football, USA and D are taken care of. Next, where do we move to? Next, where do we move to? We should move to 3 and 4 because उनका आधा information तो दिया है ना. So John is from Australia, right? And plays neither polo nor cricket. जो नहीं है वो भी हमने लिख दिया और ऑस्ट्रेलिया बाहर आ गया. एंड फिर आगे लिखा है एंडरसन प्लेज हॉकी एंड बिलोंग्स टू ईदर फ्रांस और स्पेन. तो हमको पता है एंडरसन प्लेज हॉकी, राइट? कहा गया एंडरसन प्लेज हॉकी. तो हॉकी, अब देखो हॉकी वो प्ले करता है और ये और ये प्ले नहीं करता, तो टेनिस हो गया ना इसका. दिस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, राइट? एंड बिलोंग्स टू ईदर फ्रांस और स्पेन. ये फ्रांस का है या स्पेन का है, ठीक है, ओके. Then what do we have? Bobby belongs to neither France nor UK. Bobby ना फ्रांस का है ना यूके का है, तो ये स्पेन का हुआ. ये स्पेन का हुआ तो ये इंसान फ्रांस का हुआ, राइट? और चार्ली प्लेज नीदर टेनिस नॉर पोलो, तो ये पोलो नहीं खेलता तो यही पोलो खेल रहा होगा, फिर ये क्रिकेट वाला होगा और विच एवर countries left and you have your answer. ठीक है, which of the country does Bobby belong to? Spain. What game does Charlie play? Cricket. What is the name of John's country and what game does he play? Australia and tennis. Which sport does Frenchman play? French कौन है? French A है, तुम्हारा हॉकी खेल रहा है. If Charlie moves to the USA, ठीक है, क्या हुआ? Charlie moves to the USA, ये USA बन गया. And the person who plays football shifts to Australia. फुटबॉल कौन खेल रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया चला गया. यूके बचा है अभी. एंड जॉन मूव्स टू द यूके. देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूके वाले को यूएसए किया, इसको ऑस्ट्रेलिया, इसको यूके, तो यूके ऑस्ट्रेलिया ये सब इंटरचेंज हो गए, ठीक है. देन द पर्सन हु प्लेस क्रिकेट लिव्स इन विच कंट्री? चार्ली है ना क्रिकेट वाला, तो यूएसए है ना. स्ट्रेट फॉरवर्ड. चलो हो गया, गुड. लेट अस नाउ डू सेट नंबर 6 नाउ. अभी हो गया बहुत बेसिक्स, अब थोड़ा थोड़ा मॉडरेट करते हैं. लेट अस डू दिस वन टुगेदर, ठीक है. लेट अस डू दिस वन टुगेदर. अब तुम बोलोगे कि अरे अभी तक तो बच्चे टाइप के छोटे छोटे सेट्स आ रहे थे, अचानक क्या हो गया? सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट मूविंग अहेड, है ना. अब देखो इसमें ना 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ कोर्स, अब तक जो हम डिस्ट्रीब्यूशन की क्लूज कर रहे थे वहां पे पीपल्स नेम यू कुड इजीली प्लेस, है ना. जो भी PQRS MNOPQ, you could easily place those people's names and put attributes. Why? Because हर एक इंसान का attribute पता था कि उसको like what attribute belongs to them and what doesn't belong to them. इस तरीके से language थी. But here if you see, the clues are not like that. Clues are not people specific. There are people A, B, C, D, E and all clues are not just for A, B, C, D, E. There is a random clue that person from UK speaks this language. The person who spoke this language is a cricketer. So now you have clues that are basis of person's language also, not just for person. We don't know which person this is, but 2 different attributes. Maybe their profession and their language, or the country they belong to and their profession, or their country and their language is matching. है ना. तो इसमें your primary variable is not just the person. So that's one thing to notice. तो इसमें तुम directly ABCDE करके solve नहीं कर पाओगे. कोई भी चीज किसी से भी related हो सकती है, ठीक है. That's first. Secondly, if you realize, this is the first thing, ठीक है.
दूसरा नेचर ऑफ क्लूज तुम्हें क्या रियलाइज होता है कि यहाँ पे तुम्हें हर एक क्लू में देयर इज नो वन क्लू विच टेल्स एवरीथिंग, बट हर एक क्लू में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ not not such important information दी है. For example, if they say that A is a businessman, that's like direct association, A and businessman. E was not from UAE, so E could be from 4 other countries, right? But not from UAE. So half of it is direct information, half is extremely indirect. Second clue देखो, the person who is from UAE was a doctor. So UAE and doctor got directly connected. But which person that was, we don't know. है ना? तो इस तरीके से काफी सारे क्लूज है जिनका आधा डायरेक्ट एसोसिएशन है और रिमेनिंग आधा डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं. तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट में और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में इट इज डिफिकल्ट टू स्पॉट that one variable which will be a key variable or that one clue which is a major clue, because every clue is half given, right? And all the clues are not associated to one single attribute. All clues are not associated to just a person or just a language or just a country or just a profession, and that is why we cannot find what is a key variable also. है ना? मानो सारे क्लूज ए बी सी डी या ई के लिए दिए होते तो हमको पता चलता कि इसमें से ए बी सी डी ई में से कौन मेजर है, बट कभी ए बी के बारे में दिया है, कभी लैंग्वेज, कभी कंट्री, कभी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? सो देयर इज नो की वेरिएबल एंड देयर इज नो मेजर क्लू. दिस इज वन ऑफ दो सेट्स जहां पे देयर इज नो की वेरिएबल, नो मेजर क्लू. सो हाउ डू वी मैन्यूवर थ्रू दिस सेट्स? अभी तक हमने जो लीनियर इक्वेशंस के भी क्वेश्चन करे, हर टाइम each and every time we were able to spot this is either a major clue or a key variable, and that happens many a times. But when you actually notch up the kind of questions, it happens कि ऐसा हमें नहीं मिलता, and that is why we need to prepare for that thing also. ठीक है? So did you understand the two differentiators इसके, है ना? One कि key variable ढूंढना क्यों difficult है, because attributes कुछ भी किसी से भी मैच करे, और दूसरा major clue क्यों difficult है, because हर एक clue आधा direct information और आधे indirect information के बारे में है. ठीक है? नाउ दैट यू हैव स्पेंट इनफ टाइम लुकिंग एट इट, क्या तुम में से किसी को लगा कि कोई क्लू है जहां से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा, या कोई वेरिएबल है जहां से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा? ऐसे किसी को लगा? कुछ है तो मुझे बताओ. Okay, somebody thought eighth. Yeah, eighth we can definitely start from because this is direct information. 4, because see, 4 is the worst clue. 4 is the worst clue. Why? Because clues that tell you what doesn't happen. In VRC also I taught you yesterday कि what doesn't happen is not important. What happens is important. Same in DLR when they say that USA is not from S or nor T, doesn't speak S or T, then there are 3 other possibilities that can belong to USA. Right? He was not a painter means there are 4 other professions that are allotted. So it tells you, it opens up more questions than answers anything. ठीक है? So जहां पे भी not वाली लैंग्वेज होती है ना, वो usually like 95% of the times it's useless. ठीक है? तो हम डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं वहां से जहां से हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है. 8th is right. Somebody is saying 1 because of this is also right. But ideally, the way to approach these kind of questions is basically writing it all. जो हमें पता है वो लिखो, जो नहीं पता है वो लिखो. And then once you have an arrangement with all these possibilities, then you will know where you can start from. This is one of those questions. तो हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम एट्रीब्यूट्स लिखने वाले, बहुत जरूरी है. राइट? इंट्रोडक्टरी कंडीशन के हिसाब से we have 5 people, A, B, C, D, E. ठीक है? Then we have 5 countries: India, China, USA, UK, and UAE. ठीक है? Then we have 5 languages, which is P, Q, R, S, T, and we have 5 professions, which is engineer, doctor, businessman, painter, and cricketer. My objective behind writing it this way is I won't have to look at that question again. जब मैं सॉल्व करूंगी ना एग्जाम में बैठ के, my question will be here, my paper where I'm solving is here. The more this action that I do, the more anxiety I add to myself. है ना? तो वो एग्जाम सिनेरियोज में या जब तुम टाइम पे टेस्ट दे रहे हो ना, तब इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू कीप एज लेस एक्शंस एज पॉसिबल सो दैट योर ब्रेन इज काम, योर ब्रेन इज नॉट गेटिंग टायर्ड ऊपर नीचे देख के. ठीक है? सेकेंडली, इट एड्स पैनिक कि क्या पढ़ना है, राइट? दैट एड्स पैनिक. थर्ड, you have one more thing to think about. You don't need that thing, right? You rather think about the clues. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं which come from personal exam experience, है ना? एग्जाम एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग एग्जाम एवरी ईयर. ठीक है? तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि ये लग सकता है किसी को यार ये टाइम वेस्ट है, बट ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता. इट हेल्प्स यू स्टे काम, इट हेल्प्स यू स्टे फोकस, इट हेल्प्स यू फोकस ऑन राइट थिंग्स. ठीक है? तो इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है कि तुम सब यहीं पे लिख लो और यहीं पे क्रॉस और टिक करते जाओ. जितना क्रॉस और टिक हम करेंगे उतना इजीली हमको पता चलेगा क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है.
ठीक है. नेक्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू फॉर्म अ टेबल एज यूजुअल, राइट. वी विल फॉर्म अ टेबल. टेबल में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स है. क्या क्या है? पर्सन, कंट्री, द लैंग्वेज एंड द प्रोफेशन, राइट. ये 4 चीजें हमको डालनी है. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू राइट अप वॉट एवर वी नो. वी आर गोइंग टू राइट अप वॉट एवर वी नो, बिकॉज दैट इज वॉट इज अवेलेबल. हर एक क्लू आधा अधूरा है. सो लेट अस राइट वॉट एवर वी नो. वी नो दैट ए इज अ बिजनेसमैन. लेट मी राइट ए एंड लेट मी राइट बिजनेस. फिर ये लिख लिया हमने, बिजनेसमैन हट गया. ठीक है. फिर उसके बाद दिस पार्ट इज डन. बी स्पोक लैंग्वेज आर, तो वी नो अबाउट बी. दिस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. What do we know? What else do we know? A person from UK spoke language P. तो अब यूके कहीं पे हमें लिखना पड़ेगा, हमें नहीं पता कौन सा पर्सन है. ठीक है. यूएई वाला डॉक्टर है, ये भी हमें पता है. हम सीक्वेंशियली जाते हैं यहाँ पे. क्यों सीक्वेंशियली जा रहे हैं? बिकॉज सारे क्लू आधे अधूरे. ठीक है. तो लेट अस जस्ट राइट एंड देन विल कीप ऑन मर्जिंग. ओके. सम पीपल ऑल्सो डू ऐसा कि अगर ए बी सी डी ई के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है वो लिखो और उसके आगे बढ़ो. ये भी कर सकते हैं हम. चलो लेट्स डू दैट. आई टेल यू मल्टीपल अप्रोचेस टू अप्रोच दिस. ठीक है. लेट से हमने पर्सन को मार्क कर दिया कि पर्सन इज माय मेन वेरिएबल. उसके हिसाब से मुझे बताओ. तो मुझे पता है ई इज नॉट फ्रॉम यूएई. ये हमने लिख दिया, तो ये दिस इज डन. फिर उसके बाद में आगे क्या है? डी. हम सिर्फ एबीसीडी ई वाले क्लूज देख रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ बोला है डी डिड नॉट स्पीक एस. डी डिड नॉट स्पीक एस. डिड नॉट स्पीक आर ऑल्सो ऑब्वियसली बिकॉज आर इज ऑलरेडी एलोकेटेड. एंड पेंटर वाला पार्ट हम लिखेंगे नहीं, तो दिस इज डन. ठीक है. फिर उसके बाद में आगे क्या आया? सी वाला. सी वाला देखेंगे हम. सी वॉज फ्रॉम इंडिया. सो यू हैव सी इज फ्रॉम इंडिया. सो इंडिया इज एलोकेटेड ऑलरेडी. एंड ही वॉज नीदर अ पेंटर नॉर एन इंजीनियर. सो वी नो कि वो पेंटर नहीं था, वो इंजीनियर नहीं था, वो बिजनेसमैन भी नहीं था, राइट. पेंटर भी नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, तो डॉक्टर या क्रिकेटर ही होगा. ये लिख लेती हूँ, डॉक्टर, क्रिकेटर, दोनों में से कुछ हो सकता है. ठीक है. सी के बारे में पता है, और पता है कि हमको डी और ई के बारे में कुछ कुछ नहीं पता. सो दिस इज व्हाट वी रोट अबाउट द वेरिएबल्स. अब इसके बाद दूसरा टेंजेंट क्या जा रहा है? दूसरा कंट्री वाइज इन्फॉर्मेशन है. कंट्री वाइज इन्फॉर्मेशन है, सो यू माइट चूज टू फॉर्म अ डिफरेंट टेबल फॉर इट एंड देन यू मर्ज. ठीक है. यू फॉर्म अ डिफरेंट टेबल फॉर इट बिकॉज नाउ कंट्री वाला मैं तो यहाँ लिख नहीं सकती हूँ. कहाँ लिखूंगी, कैसे लिखूंगी? आई वुडंट नो, राइट. सो फॉर दैट आई कैन चूज टू फॉर्म अ डिफरेंट टेबल. सो लेट मी फॉर्म अ डिफरेंट टेबल. यहाँ बनाती हूँ. ठीक है. So now this is where I am associating a country as my key variable and what is the information available for every country. Person, language and profession. So what do I know? I know that सारी सारी कंट्रीज का नाम लिख लेती हूँ पहले मैं. क्या क्या है मेरे पास? इंडिया है, चाइना, यूएसए, ज्यादा जगह चाहिए, यूएसए, यूके, यूएई. I know this is not E. I know this is C. ठीक है. What else do we know? That the person who is from UAE is a doctor. We know this person is a doctor. ठीक है. We know this person is a doctor. अभी देखो, अभी देखो. ठीक है. अभी क्लैरिटी आने लगेगी तुमको. If you look at these two tables, what do you realize? You realize that a C could be a doctor or a cricketer, but UAE वाला डॉक्टर है. मतलब सी हमारा क्रिकेटर हुआ कि नहीं हुआ? सी क्रिकेटर हुआ ना. तो देखो, द मोमेंट यू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव एंड ड्रॉ अनदर टेबल कंट्री वाइज, यू गेट अ मेजर क्लू कि ओ दिस पर्सन इज अ क्रिकेटर. ठीक है. सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ अप्रोचिंग इट दिस वे. ठीक है. I'll just make use of the fact that I have an eraser here. I'll be like, okay, this is a cricketer. Because C is from India, not from UAE. That's why we know that this person is a cricketer. So cricketer is also out of business. ठीक है. ये हमारा हो गया है. उसके बाद हमारे पास क्या है? यस, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब पेंटर के बारे में तो हमें पता नहीं. पेंटर इज नॉट. हमको कंट्री वाइज इन्फॉर्मेशन देखनी है. द पर्सन हु वाज फ्रॉम यूएसए नीदर स्पोक एस नॉर टी. ठीक है. यूएसए वाला पर्सन एस और टी नहीं बोलता था, तो उसका एस और टी लैंग्वेज था नहीं. ठीक है. एस और टी लैंग्वेज था नहीं, तो उसका लैंग्वेज पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद में नॉर वॉज अ पेंटर बाय प्रोफेशन. वो पेंटर भी नहीं है. चलो ठीक है भाई. उसके बाद में ये भी हो गया फोर्थ.
फिर आगे सी वॉज फ्रॉम इंडिया एंड ही वॉज नीदर अ पेंटर नॉर एन इंजीनियर। सी का सी, ये वाला क्लू नहीं देखना है हमें, सी का बात हो गया है। अब ये भी लैंग्वेज वाइज है। सेवेंथ इज यूके वाला पर्सन स्पोक लैंग्वेज पी, यूके वाला पर्सन स्पोक लैंग्वेज पी, तो मतलब ये क्यू और आर होगा। ठीक है, अब इफ वी मर्ज व्हाट डू वी डू? नहीं, whoever is saying that R can't be the language because B is speaking R, तो B could be from USA also, right? B could be from USA. So we can't say कि R वहां belong नहीं करता because इस टेबल में R is associated to a person, यहाँ पे R is associated to country, है ना? That is why we have different tables. चलो, अभी हमें क्या बोला है, अभी हमको पता है, अभी देखो हमने क्या किया है, अब तक हमने वो सारा ब्लैक ब्लैक कर दिया है, वो सारे क्लूज जो आइदर पर्सन रिगार्डिंग थे या कंट्री रिगार्डिंग थे, क्योंकि हमने वही दो टेबल बनाए। अब देयर इज थर्ड डायमेंशन, हमको लैंग्वेज और प्रोफेशन को एसोसिएट किया गया है, उसके लिए आइदर हम थर्ड टेबल बनाए या फिर यहीं पे घुसाने की कोशिश करें। आई वुड सजेस्ट यहीं पे घुसाओ, क्योंकि अभी पॉसिबल है, क्योंकि अभी बहुत कुछ नहीं बचा है। ठीक है, सो अभी उन्होंने पर्सन पर्सन और लैंग्वेज लैंग्वेज और प्रोफेशन का क्या दिया है? पेंटर डिड नॉट स्पीक एस, तो हमें पता ही नहीं पेंटर कौन है, तो हम ये बस अलग से ही लिख देते हैं कि पेंटर इज नॉट एस, ये हम लिख देते हैं अलग से, हमारे पास होना चाहिए। ये हो गया। द पर्सन हु स्पोक क्यू वाज अ क्रिकेटर, मतलब ये हो गया। सो सी के बारे में हमें सब पता है, हमें इंडिया, क्यू एंड क्रिकेट। सो व्हाट डज दैट टेल? दैट टेल्स अस यहाँ पे क्यू हो नहीं सकता, तो ये आर हो गया। अगर ये आर हो गया मतलब ये यूएसए हो गया, बी यूएसए वाला हो गया। सही बात है, सही बात है, नहीं है ना? है ना? तो ये हमारा हो गया, दिस इज यूएसए, दिस इज आर एंड दिस इज नॉट अ पेंटर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई है मर्ज, ये इन्फॉर्मेशन हो गई है मर्ज। अब चाइना के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, हमें पता है यूके वाला पर्सन पी बोलता है, तो यूके वाला पर्सन तो किधर भी आ सकता है। यूएई वाला पर्सन डॉक है, तो देखो यूएई इधर नहीं आ सकता बिकॉज डॉक्टर ही हो नहीं सकता। सॉरी, हाँ, यूएई इधर आ नहीं सकता बिकॉज ये डॉक्टर हो नहीं सकता। यूएई इधर आ नहीं सकता, तो यूएई एंड डॉक्टर इज हियर ओनली। डू यू सी हाउ आई एम मर्जिंग द टू इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव? ये भी चला गया, राइट? अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है यूके और पी डालने का, वो मैं इधर भी डाल सकती हूँ, यूके एंड पी इधर भी डाल सकती हूँ, तो कांट से मच, कांट से मच। ठीक है, तो नाउ लेट अस, अभी वी नो द पेंटर, अब दिस पर्सन इज नॉट अ पेंटर, तो वी नो ओनली दिस पर्सन इज अ पेंटर। तो अभी कौन बचा? इंजीनियर, तो ये इंजीनियर भी आ गया। सो दिस ऑल इज टेकन केयर ऑफ, राइट? दिस ऑल इज टेकन केयर ऑफ। अब हमें बस एसोसिएट करना है कि पेंटर इज नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज एस, तो यहाँ एस नहीं आ रहा है, ठीक है, एस भी नहीं आ रहा है, क्यू भी नहीं आ रहा है, पी या टी में से कुछ आएगा, लैंग्वेजेस पी और टी में से कुछ आएगा। अगर तो यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी है कि फिर पी और टी में से कुछ आएगा, तो कहीं भी आ सकता है, यूके एंड पी कैन कम एनीवेयर, we don't know, we don't know, it could be UK and P here, or it could be UK and P here, and the other possibility is then there's China and there's language T, and there's China and language T. There are possibilities now, so this is how we arrive at our answer. Do we have clarity on this? Do we have the clarity on approach? Here we couldn't find one kind of variable to benchmark on. There were two variables because the clues were given such. One was कि ABCDE के हिसाब से and one was countries के हिसाब से. So we were like, okay, let me process this clue in two parts. Let me do one country wise. Let me do another which was person wise. And then when you map these tables together, you were able to allocate. ठीक है, और फिर एंड में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आई। अब जब भी दो पॉसिबिलिटीज आती है, वी डू अ हाइजीन चेक, एंड दैट इज वी गो थ्रू ऑल द क्लूज अगेन टू बी श्योर दैट वी हैवंट मिस्ड ऑन समथिंग एंड वी हैवंट मिसरिप्रेजेंटेड समथिंग। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम में तुम ऐसे कट नहीं कर पाओगे, तो एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए कट किया था मैंने। चलो फिर से पढ़ते हैं, क्या क्या बोला है यहाँ पे। अभी हमको हमको बोला गया है कि A is a businessman, E is not from UAE. A is a businessman, E is not from UAE. Both taken care of. Person who is from UAE is a doctor, UAE is a doctor. ये भी हो गया। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, हमने गलत करी है। A person who is from UAE is a doctor, that also happened. D did not speak S. D did not speak S. And even the painter did not speak S. ये भी करेक्ट हुआ। The person was from USA, did not speak S or T. ये भी हुआ। And was not painter by profession. ये भी हुआ। C was from India and he was neither painter. C was from India और वो painter और engineer नहीं था, ये भी हुआ।
The person who spoke Q was a cricketer, ये भी हुआ. The person from UK spoke the language P, that is also taken care of. B spoke language R, that is also taken care of. Languages wise हमारे पास ना S कहीं allocated नहीं है actually. S और R तो यहाँ पे P और T में से ही कुछ होना चाहिए था. तो S आएगा कहाँ भाई? मुझको पता ही नहीं है. UAE वाले के साथ P. Oh, now this is solving. This is solving for us. What is this solving for us? This is solving for us कि भाई S और R नहीं आ सकता, Q नहीं आ सकता, P भी नहीं आ सकता because P is associated to UK, so then T is here. So this was actually S. China वाला is this. ठीक है? All right. China वाला is actually S and this is T. तो ये भी हमारा हो गया फिक्स. तो और ये पॉसिबिलिटी को इरेज हो नहीं रही है. इसके बेसिस पे लेट अस आंसर द क्वेश्चन. Okay. Did we understand how we mapped two? This is most important. सबसे important था how we mapped two tables. Did you understand that? Give me a quick show of hands, thumbs ups, so that I know that this is a very crucial concept because yes, yes, yes. Okay, there's a question. The question says, then in this case, can we say that the number of important variables in a question would depend on the ones for which majority clues are given? Number of important variables नहीं है यहाँ पे. There is no important variable. What do you mean by key variable? Key variable मतलब एक कोई variable जो तुम बताओ. A, B, C, D ये सारे variables है बेटा. ये सारे variables हैं. इसमें से कोई एक variable जिसके बारे में सबसे ज्यादा information हो वो key variable हो गया. ठीक है? So these are, there was no key variable. ये जो चीजें है ना इसको dimensions बोलते हैं. These are dimensions. Dimensions मतलब एक वेरिएबल के बारे में तुम्हें क्या क्या सोचना है. ये तुम्हारा वेरिएबल है एबीसीडी, इनके बारे में क्या क्या सोचना है. तुम्हें सोचना है कि कंट्री कौन सी है, लैंग्वेज कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है. ठीक है. अगर तुम वेरिएबल कंट्री को वेरिएबल समझो तो उसका डायमेंशन हो जाएगा कि पीपल है कि लैंग्वेज है कि प्रोफेशन है. ठीक है. सो वेरिएबल इज दैट वन थिंग. अ पर्सन इज अ वेरिएबल इन दिस टेबल. इन दिस टेबल योर कंट्री वाज अ वेरिएबल. ठीक है. एंड वो वेरिएबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स थे दैट यू हैड एसोसिएटेड. वो कंट्री से एक पर्सन, एक लैंग्वेज, एक प्रोफेशन. इस टेबल में यू हैड एसोसिएटेड एक वेरिएबल पर्सन से तीन डायमेंशन, उसका कंट्री, उसका लैंग्वेज, उसका प्रोफेशन. ठीक है. तो की वेरिएबल इज बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. वो इन सब में से कोई एक चीज होती है. आइदर अ कंट्री, इंडिया, चाइना, यूएसए, व्हाटएवर, और अ पर्सन ए बी सी डी ई ऐसा. बट ऐसा कोई की वेरिएबल था ही नहीं. वी हैड टू डायमेंशंस टॉक्ड अबाउट. वन डायमेंशन वाज पर्सन रिलेटेड टू different things and another dimension was country as a dimension related to other things. So we took the entire bar. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये टेबल पूरा फॉर्म किया by writing A B C D E. We decided let's fix on this dimension person and then write all the clues which were telling us something about the person. So हमने जो भी जहाँ पे भी ये लेटर्स मेंशन थे उनके क्लूज इस टेबल में लिख दिए. ठीक है. फिर यहाँ पे हमने बोला okay let me fix this dimension. Let me fix all countries and then write all the information that is given. Do we have clarity on this? We get clarity. How do we get clarity? That the painter is not speaking S. That's why this does not belong here. So इसका मतलब China and S belong to A. So we have A belongs to China. Good. Then who spoke language Q? Who spoke? C spoke language Q. Who is a doctor by profession? Who is a doctor by profession? D. Right. How many of the following combinations are correct? बताओ. India is engineer. Is that correct? No. D is a painter. Is that correct? No. UK is a painter. Is that correct? Yes. So only one combination is correct. है ना? Which country did cricketer come from? India, of course. बाकी सारे स्पोर्ट कहाँ हमारे यहाँ पे.